Good morning, sir. Good morning, everyone. Good. Beta, am I audible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, how are you all? Fine, sir. Okay. Just wait for 1 minute so that the others could join, and after it, we'll be starting. Just wait for 1 minute. I am just going to share my screen with you. You all are requested to turn your cameras on. Please turn your camera on. Manas, Arab, Sir, Ashray. just a second. Just a second. Okay. So, beta, I'm just sharing my screen with you. Today, we are going to perform the Python programs. Okay. Today, we will learn how can we execute the Python programs. Sure, Tyagi. Beta, what we had already done in the Python programs? So we have learned about the the print programs and for programs, and you have told us how to make a program and how to execute one. Acha, I told you how to make a program and how to execute. I just also told you Yes, regarding the two types of mode in Python. First one is the script mode, and the other one is the interactive mode. I just told you regarding this also, है ना? yes, sir. Okay. So I hope my screen is visible to you. Screen is visible. So not right now. No, sir. Just a minute. Now it would be visible. Yes, sir. So, beta, today we are going to learn how to print a table of a number. Means to say, we are going to print, like if we want to print a table of an entered number, then how it's possible to do this. ठीक है कि अगर मैं कोई नंबर एंटर करा रहा हूँ तो उसकी टेबल कैसे प्रिंट होगी. Carefully learn this. So first of all, I have to take a variable. Here I have to take a variable. Here I am going to take the variable a is equals to int. Int is a data type. Input is a function which I told you earlier. Okay, this is a comment. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे write a program to print the table of the entered number. ठीक है, entered number की टेबल हम कैसे प्रिंट कराएंगे हमें ये सीखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आई हैव टू टेक अ वेरिएबल a is equals to int input bracket enter the number. Now I have to use the for loop here. I am going to use the for loop here for I in range. अब बेटा रेंज में मैं दो वैल्यूज लूंगा. फर्स्ट वन विद द स्टार्ट वैल्यू एंड द अदर वन विद द स्टॉप वैल्यू. अच्छा, मैं स्टॉप वैल्यू 11 क्यों ली? क्योंकि हमेशा जब भी प्रोग्राम रुकेगा, लूपिंग कंस्ट्रक्शन रुकेगा, तो वो एक डिजिट पहले रुकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 ली स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू. बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. I have to use a print statement here. I am going to print the number which I will enter in the A. So here I will choose the A variable A comma string लूंगा मैं. string में मैं x ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए, और यहाँ पे फिर मैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट ले लेता हूँ i, और फिर स्ट्रिंग लूंगा. स्ट्रिंग में मैंने डबल कोट्स ले लिया, ओ सॉरी डबल इक्वल्स टू ले लिया. डबल इक्वल्स टू लेने के बाद फिर मैंने लगाया बेटा a multiply I bracket close, and now I am going to run this program. First I need to save this program. तो मुझे यहाँ पे सेव करना है वन. मैं सेव कर लेता हूँ. टुडे इज 7th ऑफ जैन, तो आई एम गोइंग टू सेव इट विद 7th जैन. ठीक है, इसको मैंने सेव किया. सेव करने के बाद मैंने नंबर डाला 3. देखो पूरी 3 की टेबल आ गई. कोई भी नंबर एंटर करूंगा मैं, उसकी टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी.
किसे किसे समझ आया और किसे किसे नहीं आया? यशमित, मानस, आरव, Sir, I understood. अरहान, अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रोग्राम। यहाँ मैंने एक ए वेरिएबल लिया, इंटीजर मेरा डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया और मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, एंटर दी नंबर, जिसकी मुझे को टेबल प्रिंट करानी है, वो नंबर मैंने एंटर करा दिया। फिर मैंने फॉर लूप लगाया, आई नाम का एक वेरिएबल लिया मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए, इसमें आई इसकी वैल्यू स्टोर होती चली जाएगी, वो कितने टाइम स्टोर हो गया। मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 1 और मेरी स्टॉप वैल्यू है 11, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग और स्टॉप वैल्यू 11 क्यों ली? 11 बेटा मैंने इसलिए ली क्योंकि लूपिंग कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि वो एक वेरिएबल पहले, एक वैल्यू पहले रुकता है जाके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 11 ले लिया क्योंकि हमें 10 तक चाहिए था। अगर हमें 11 तक चाहिए होता तो हम 12 लेते, 12 तक चाहिए होता तो हम 13 लेते, एक वैल्यू आपको ज्यादा लेना। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। यहाँ पे मैंने सिंपल सा ए में जो वैल्यू डालूंगा वो यहाँ पे प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू मैं ए में डालूंगा वो यहाँ पे प्रिंट होगी मेरी। अब ए में प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई स्ट्रिंग बनाया मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए, और फिर हम जो आई को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं 1 to 11 कि 1 1 2 इस तरीके से जो आई, फिर मैंने फिर से एक स्ट्रिंग लिया इक्वल्स टू का साइन इक्वल्स टू शो कराने के लिए, और मैंने ए इंटू आई करा दिया, मतलब ए में जो वेरिएबल डालूंगा उसकी आई से मल्टीप्लाई करा के आपको आंसर दे दूंगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? Clear, sir. हाँ, Sir, किसको आगे नहीं समझो. आई? आ गई समझ में? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर प्रोग्राम इन विच वी आर गोइंग टू लर्न कि हमें जो नंबर एंटर कराएंगे वो चेक करना है कि वो एंटर्ड नंबर इवन है या फिर ऑड है। बेटा मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दीज प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो बेटा ध्यान से समझना। कौन बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है ये? प्लीज म्यूट योरसेल्फ जो भी है, ठीक। अब बेटा इन प्रोग्राम्स में हम क्या करेंगे, जो भी हम अब प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें राज से बेटा, इन जो भी हम प्रोग्राम करेंगे अब सारे, ये प्रोग्राम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक, तो अगेन आई एम गोइंग टू वन मोर प्रोग्राम इन विच हम लोग चेक करेंगे कि जो हम नंबर एंटर करा रहे हैं वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। इवन ऑड की कंडीशन वाला प्रोग्राम नाउ वी आर गोइंग टू डू, चेक इवन और ऑड, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन मोर वेरिएबल व्हिच वुड बी a is equals to, इंस्टेड ऑफ a you can take anything, ठीक है। इनपुट एंटर द नंबर, जो भी हम नंबर एंटर कराएंगे वो हम चेक करेंगे। सो इफ ए, अच्छा बेटा मैंने एक ऑपरेटर बताया था आपको, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या था बेटा यशमित? Sir, to return remainder. रिटर्न रिमाइंडर। तो बेटा यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्यों करेंगे? हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर बच रहा है। भाई अगर किसी भी नंबर के इवन और ऑड होने की कंडीशन क्या होती है? 2 से exactly divisible हो. 2 से एग्जैक्टली वो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। तो अगर हम सिंपल सा यहाँ पे अपना मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, और जैसे हमने लीप ईयर वाला एक प्रोग्राम मैंने आपको क्लास में समझाया था, ध्यान है, जिसमें मैंने चेक किया था कि चेक वेदर द चेक द एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। नहीं ध्यान है? करवाया था. हाँ, उसी टाइप से हम इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ए मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ए का रिमाइंडर जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो उस नंबर में क्या हो जाएगा, वो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर ऑड होगा। इवन नंबर, अदरवाइज वो बेटा वो नंबर क्या होगा, एल्स में कंडीशन दे देंगे हम, एल्स प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको एक कंडीशन देके
ब्रैकेट को क्लोज कर दिया आपने, और अगेन वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। अब हमने फिर से डाला 32 नंबर डाला। एक मिनट, क्या पहले वाला एग्जीक्यूट, अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट, लेट मी मेक दिस कमेंट एज वेल। बेटा देखो, ये होता है जो मैंने हैशटैग लगाया है, इसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन सिंगल कमेंट। लाइन। लाइन सिंगल कमेंट। लाइन। बेटा लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट को लगाना है, तो मल्टी लाइन कमेंट किसी को पता है कैसे लगता है? हाउ कैन वी यूज द मल्टी लाइन कमेंट? नहीं पता? देखो, उसके लिए हम 3 टाइम्स सिंगल कोट लगाते हैं इस तरीके से, और हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। 3 टाइम्स हमने सिंगल कोट लगाया, ऊपर ओपन किया, और 3 टाइम्स हमने उसको क्लोज कर दिया, तो हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट बन गया। क्लियर? यस। Yes, sir. सर। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस अगेन। सर लेकिन नॉर्मल कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में अंतर क्या होता है? नॉर्मल कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में बेटा डिफरेंस ये है कि मल्टी नॉर्मल, ये वाला जो सिंगल लाइन कमेंट है ना, इसमें आपको सबके आगे हैशटैग बार बार लगाना पड़ेगा। मल्टी लाइन में क्या है, एक बार आपने यहाँ पे लगाया और एक बार एंडिंग में लगा दिया, ये पूरा कमेंट हो गया, अब इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ये एज अ स्ट्रिंग बन गया, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ये डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम अगेन। नंबर डाला मैंने 44, और चेक किया, इवन नंबर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस। यस। यस ठीक, सर। again we are going to learn to run this again. Now we will just put the odd number 77। odd number आ गया लिख के, it means our program is working correctly। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तो उसके बाद मैं दूसरा प्रोग्राम बताऊंगा आपको। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्विकली। Once you have done, please let me know कि sir we have done। सर डन। सर डन। ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग करने जाए, अब हम लोग करेंगे कि आपके लेटर में, आपके जो नेम है ना, उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। मान लो मेरा नाम प्रतीक मान लो क्या है ये। ठीक है, तो प्रतीक के अंदर कितने लेटर हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो काउंट कैसे करेंगे? किसी को आता है ये वाला प्रोग्राम? शौर्य, यशमित, आरव, अरहान, किसी को आता है बेटा ये वाला प्रोग्राम कि हाँ, हाउ इट इज पॉसिबल टू काउंट द कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग? एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने कैसे काउंट करना है? बोलो। अरे यार नहीं आता तो बोलो, मैं बताऊंगा अब, लेकिन बोल, रिप्लाई तो दो बेटा। सर रेंज फंक्शन से होता है क्या? किससे? रेंज लेंथ फंक्शन से। एलियन। लेंथ फंक्शन से होता है, यश श्योर। रेंज से नहीं होता बेटा। बहुत सिंपल सा 2 लाइन का प्रोग्राम है, यहाँ लिख देता हूं मैं। काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर characters present in a given string। count the number of characters present in a given string। ये हमारे कैरेक्टर्स कितने हैं गिवन स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम है। एक स्ट्रिंग एंटर करा लो, यहाँ मैं ले लेता हूँ, चलो शौर्य का इनिशियल ले लेता हूँ, एस। एस इज इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट, 2 लाइन का प्रोग्राम है ये, बहुत ही इजी था। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा, उसके बाद मैं लेन फंक्शन का यूज करूंगा
लेन, और लेन में किसकी लेंथ निकाल दूंगा मैं, एस की लेंथ निकाल दूंगा, बस क्लोज। और अगेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। हमने यहाँ पे डाला, जैसे लेट सपोज यशमित डाला, यशमित, तो कितने कैरेक्टर आ गए यशमित में, 7. आ गए 7 कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज बेटा ध्यान देने वाली है। अब मैंने अगर यहाँ पे चलो डाला पूरा शौर्य त्यागी, एक, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं, एक साथ आ जाते तो ज्यादा बढ़िया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ यशमित, चलो शौर्य त्यागी डालता हूँ, शौर्य त्यागी। शौर्य त्यागी आपके अकॉर्डिंग कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए इसमें? सर 12। 12, लेकिन कैरेक्टर्स आएंगे 40। ओ सॉरी, वो एक आगे वो दब गया, दोबारा डालते हैं। सर स्पेस भी काउंट हो अब रहा है ना? एग्जैक्टली, वाइड स्पेसेस कैरेक्टर विल बी काउंटेड हियर। ठीक है, स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर ही काउंट करेगा, ध्यान रखना। ये किसने बोला स्पेस भी काउंट हो रहा है? सर मानस। मानस। वेल वेल डन मानस। ठीक है, तो इसमें वो वाइड स्पेसेस कैरेक्टर्स को भी आपके काउंट करेगा बच्चों। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानस, बेटा व्हाट इज द फुल नेम? मानस गुप्ता। मानस गुप्ता। तो मानस गुप्ता में कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 10, बट वो हमने जो यहाँ पे वाइट स्पेस कैरेक्टर छोड़ा है, जो बीच में ब्लैंक छोड़ा है, इसको भी वो काउंट करेगा। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? डू यू हैव एनी आइडिया ऐसा क्यों होता है? नो सर। देखो क्या होता है, जब हम अब हमने एंटर द स्ट्रिंग डाला मानस गुप्ता, जैसे ही हमने मानस गुप्ता को एंटर कराया, इसमें क्या हुआ, पाइथन के अंदर मानस गुप्ता के लिए एक स्पेस रिजर्व हुई। जब वो स्पेस रिजर्व हुई, तो वो स्पेस रिजर्व होने के चक्कर में क्या हुआ, जो आपने मानस गुप्ता 10, अब सॉरी 10 ये कैरेक्टर स्टोर किए, लेकिन बीच में आपने स्पेस तो इसको भी लिया ना, ये पूरा नाम तो एक ही है, तो उसने उतने स्पेस को भी रिजर्व करा। तो इसीलिए पाइथन के अंदर जब मेमोरी एलोकेशन होता है, तो मेमोरी एलोकेशन की वजह से वो क्या करता है, वाइड स्पेस कैरेक्टर को, स्पेस कैरेक्टर को भी काउंट करता है। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस। Yes. बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़े, दूसरा प्रोग्राम कराएं। Yes, sir. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर प्रोग्राम इन विच वी आर गोइंग टू लर्न कि भैया अब कौन सा करें। कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, टेम्परेचर जो हमारा सेल्सियस में चल रहा है, इसको फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दिस। किसी को पता है कैसे होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कैसे होता है? श्योर? नो सर, ये वाला नहीं है। हम्म, नो सर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, सर देखो। 9/5 सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हाँ, कहाँ से देख लिया, गूगल से देख लिया? गूगल से नहीं देगा, नोटबुक से। अच्छा, नोटबुक में कराया है मैंने ये वाला? नहीं सर, फाउंडेशन नहीं, में वो होगा। फाउंडेशन में हुआ था। अच्छा सर अच्छा, हाँ कन्वर्जन हुआ होगा, उसमें कराया होगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे सी। वेरिएबल लेने के बाद बेटा हमने क्या करना है, सी इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट एंटर टेम्प टेम्परेचर इन सेल्सियस
टेम्परेचर को हम सेल्सियस में एंटर करा लेंगे। आफ्टर दैट F इज इक्वल्स टू ब्रैकेट C इंटू 9/5 ब्रैकेट plus 32. This is the formula of conversion from Celsius to Fahrenheit. इसकी हेल्प से हम सेल्सियस से फॉरेनहाइट में टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? Sir, I have joined late. Can you please tell me what are we doing? अच्छा, हु इज आस्किंग? आरव गुप्ता। Yes, sir. बेटा आरव, वी आर डूइंग द पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, वी आर डूइंग दिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पाइथन प्रोग्राम्स। we have Okay. we had already done 1 2 3 programs। आपकी Okay, sir. स्क्रीन पे अवेलेबल है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। Okay, क्लियर? sir. Okay, sir. नाउ वी आर गोइंग टू again type the print statement, print temperature in Fahrenheit, और जो हमने F में स्टोर कराया है उसको हम रन करा देंगे। F5 हमने इसको रन करा। मैंने डाला टेम्परेचर, अगर मैं अभी के टेम्परेचर की बात करूँ राइट नाउ इट इज 5 डिग्री सेल्सियस इन बरेली, तो मैंने 5 डाला, तो फॉरेनहाइट में इट वुड बी 41। ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? किसी को कोई भी डाउट इसमें हो तो पूछ लो अभी भी। कहीं पे कैसा भी डाउट हो, बहुत इजी इजी से प्रोग्राम है अभी तो, आज मैं इजी ही करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कर क्या रहे हैं हम। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, now we are going to do one more program in which we are going to learn to print the square pattern in Python। How can we print the square pattern in Python? Square pattern अभी मैं दिखाता हूँ। print a square pattern, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा एक लूप लगाना है फॉर आई इन रेंज, और जितनी बार हम इसको डाल देंगे, अभी लेट सपोज मैं 7 टाइम डालता हूँ, 7 it will execute at print 5 टाइम, print डबल कोट्स 2 3 4 5 6 7, और मैंने इसको रन कराया, एंटर प्रेस किया। कमेंट रह गया ऊपर वाला करना, जस्ट फॉर 1 मिनट। चलो नाउ रन दिस प्रोग्राम। देखो 7 टाइम्स जो मैंने पैटर्न लिया वो प्रिंट होता चला गया। ठीक है, ये होती है लूपिंग आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग लूपिंग। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो नाउ लेट्स कमेंट दिस वन, नाउ लर्न द अनदर वन। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में मुझे ये सबकी नोटबुक में चाहिए प्रोग्राम, ये सब जितने भी प्रोग्राम्स मैं करा रहा हूँ ना आपके क्लास ग्रुप में पढ़ जाने चाहिए लिख के। अच्छा अब श्योर इतना तो आइडिया लग गया होगा कि फेयर कॉपी में ये सारे प्रोग्राम लिख के क्लास क्लास ग्रुप में पढ़ जाने चाहिए, कॉपी में नोट डाउन करके। श्योर बेटा, Yes, sir. इतना तो आइडिया अब आपको लग गया होगा कि अगर हमें इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 20 तक, तो अब हमें क्या करना है? क्या Sir, और नंबर? multiplied by 2. I mean, plus 2. हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, हमें फाइंड आउट नहीं करना कि वेदर इट इज इवन और ऑड। यस स्मिथ, यू रेज्ड योर हैंड। सर आई इन रेंज वाले फंक्शन से करेंगे। और आई इन रेंज स्टार्टिंग वाली 2 होगी, फिर जो गैप होगा वो 2 का होगा, और एंडिंग वाली 21 होगी। ठीक है यशमित, यू आर टेकिंग द क्लासेस ऑन लैपटॉप? यस सर। डू यू हैव पाइथन आइडल इन योर लैपटॉप? यस सर। चलो, आई एम अलाउइंग यू टू शेयर योर स्क्रीन
and now you will perform this program. I have allowed you to share your screen. Yes, allow. I have allowed to share your screen. You got the permission, Yashmit? Yes, sir. Just a minute. Okay. यशमेत क्या हुआ बेटा? गुड. 1 से 20 के बीच में ना हम्म. इवन हाँ, 1 नंबर. से 20. हाँ, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. Yashmit, your screen is not completely visible. It is on interactive mode. It is still on the interactive mode. Please use the script mode. तो जो मैं कोड टाइप कर रहा हूँ वो इंटरैक्टिव मोड पे ही है. वो शो वो वाला मोड हो रहा होगा. एक सेकंड में इसको क्लोज कर रहा हूँ. हाँ, शेयर योर ओवरऑल स्क्रीन. आपने इंटायर विंडो शेयर नहीं करी होगी ना, होशियार ज्यादा हो. तो ये तो एक सेकंड कर रहा हूँ बस. ओके. अब हो रही है. हाँ, यशमित has started screen sharing. हाँ, ठीक है. Now it is good. Yashmit, I hope you didn't copied it from somewhere. सर आई रोड बाय माई सेल्फ. Okay. तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है. प्रोग्राम रन नहीं हो रहा. What the error you are getting? F5 प्रेस करो. सर रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है. वो सीधे इंटरैक्टिव मोड अपने आप खुल जा रहा है. इंटरेक्टिव मोड अपने आप खुल जा रहा है. प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम तो सही. सही है. प्रोग्राम तो सही है. प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है. रुक जा, मैं कराता हूँ. रहने दे, अपनी स्क्रीन क्लोज कर ले. स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन. लेट मी डू इट. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू. 1 second. 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 1 second.
I hope screen is visible to you all. Yes, sir. ठीक. Now we are going to learn print even numbers from 1 to 20. Print even numbers from 1 to 20. So what I do, simply जैसे इसने लिखा था हमें वैसे ही लिखना है for I in range. अब रेंज हमें क्या देनी है बेटा, इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट है, तो 2 कॉमा हमें पता है कि एक वो पीछे कम पे रुकता है, तो 2 कॉमा 21 एंड ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा लगा के फिर से 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 हमने क्यों लिया, स्टेप वैल्यू हमने 2 ली थी, वो एक एक दो दो वैल्यू छोड़ के आगे बढ़े। फिर हमने उसके बाद इसको फिर से रन कराया और हमने लिखा प्रिंट आई ब्रैकेट क्लोज एंड F5 एंटर। रन किया प्रोग्राम हमने। अरे यार पीछे अब देखो ये प्रिंट हो गया आपका, आ गया। समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक। क्लियर। नाउ अगर हमें बेटा इसमें ऑड नंबर करने हैं प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये इवन है, इसकी जगह अगर हमें ऑड नंबर्स 1 से लेके 20 तक प्रिंट करने हैं, देन व्हाट वी विल डू, तो जो स्टार्टिंग प्रिंट वैल्यू 1 रखेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू 1 रख देंगे और गैप, बस सिंपल सा हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। ऊपर वाला अभी हमने कमेंट नहीं किया, तो इवन और दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो गए हैं। अगर हम इसको भी कमेंट कर देंगे, इसको हमने कमेंट कर दिया। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। और हमारा 1 से लेके 20 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। बोलो समझ आया दोनों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो, नाउ Yes, वी आर sir. गोइंग टू लर्न, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इफ वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट SI विद द हेल्प ऑफ पाइथन, देन हाउ वी विल डू दिस। हमें SI फाउंड करना है पाइथन की हेल्प से, देन कैसे पॉसिबल है वो हमारे लिए, बताओ किसी को आइडिया है? सिंपल बताओ, शौर्य, यशमेत। तो पहले यूजर से प्रिंसिपल रेट और इंटरेस्ट की वैल्यूज लेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का हाँ। फॉर्मूला P/R/100 × T लगाएंगे, और उससे वो मल्टीप्लिकेशन वाले साइन से करके आंसर ले आएंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऐसा है। बस प्रिंट SI करना, अभी हम करते हैं इसको कैसे करना है। तो अगला पीरियड भी आपका ही है या ये वाला था? नहीं बेटा, एक्चुअली शोभित सर का क्लैश हो गया था ना, तो मेरा उनकी जगह पे लगा है। अब शायद वो वाला सेकंड पीरियड शोभित सर लेंगे। 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट में मैं करा दूंगा, उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेट ज्वाइन कर लेना, जितने बच्चे हो जाएंगे उतने ज्वाइन कर लो, जिसमें नहीं आया वो उनकी क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। अभी फिलहाल 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट में मैं ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट करा दूंगा आपका। ठीक ठीक है। Okay, sir. चलो, तो वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोग्राम। P is equals to, हम we are going to take three variable here. P is equals to int, अब instead of int we can also take the floating point number here। ठीक है, तो float, हम यहाँ पे float ले लेते हैं। input enter principal, enter principal bracket close, r is equals to float। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्लोटिंग में भी हो सकता है ना, तो हम इसमें फ्लोट ही ले रहे हैं। डिफरेंस पता है इंटीजर और फ्लोट वैल्यू में? तो फ्लोट Yes, sir. वैल्यू डेसिमल वैल्यू। Decimals में होती फ्लोट हैं. में आपकी डेसिमल वैल्यू होंगी। Decimals में होती ठीक। हैं. हाँ, तो फ्लोट में हमारी डेसिमल वैल्यू होंगी फ्लोट, और इसके बाद हम t इक्वल्स टू, टाइम में भी हम डेसिमल ले लेते हैं, चलो इसमें भी हो सकता है। इनपुट एंटर टाइम ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब हम सिंपल सा SI का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, विच वुड बी P प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम
ब्रैकेट क्लोज अपॉन 100। ये आपका एसआई का फॉर्मूला होता है। प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज ब्रैकेट क्लोज एंटर एसआई। और हम इसको दोबारा से हमने इसको रन कराया F5 की हेल्प से। F5 की, अब बताओ प्रिंसिपल क्या डालें, बोलो जल्दी बोलो। सर 10,000। 10,000 डाल देते हैं। रेट क्या डालें बताओ। 5। 5 चलो 5 डाल देते हैं रेट। चलो टाइम क्या डालें बेटा, 4 year क्या डालें। 3 2 टाइम 2 डाल देते हैं। चलो देखो आ गया। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना के, आप कोई भी फॉर्मूला पुट करके, जैसे अगर मान लो हमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, ट्राइंगल निकालना हो, इस तरीके से हम वैल्यूज इनपुट करा के उनका फॉर्मूला बना सकते हैं। और उनका फॉर्मूला इनपुट करा के और हम अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। yes sir यस सर। क्लियर हुआ? yes sir चलो अब मुझे एक बात बताओ। अब मुझे, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में मुझे कौन एक प्रोग्राम करके दिखाएगा जिसमें आप लोग करके दिखाओगे फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्रीन शेयर करके कौन लैपटॉप पे क्लास ले रहा है? मैं मैं भी ले रहा हूँ। श्योर आप फटाफट स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दो। आई एम गिविंग यू द परमिशन, देन डू इट सर मैं फास्ट। विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ पर। VS कोड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ आप VS कोड यूज कर सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं। You can use the VS Code, sure. Sure, ask for the permission जल्दी, 2 मिनट बचे बेटा। Class will automatically end after 2 minutes. अच्छा एक काम करो, ये वाला तुम लोगों ने आता है ना, ये वाला प्रोग्राम यस सर। कर लोगे ना? ये यस वाला सर। कर लोगे ना? फटाफट अपनी कॉपी पे लिखो और ग्रुप में डालना स्टार्ट करो। आई एम गिविंग यू द परमिशन। ओके सर। सर सारे प्रोग्राम चाहिए? नहीं नहीं, सिर्फ जो मैंने अभी बोला है वो वाला लिखो करो। सर ग्रुप में लेकिन ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज है। देखो देखो कर यस कर सर। दी मैंने परमिशन चेंज कर दी मैंने, देखो कर रहा हूँ, परमिशन चेंज कर रहा हूँ। ए की भी कर दी, बी की भी कर दी, अब सी की कर रहा हूँ। और बाकी जो आपने सारे लिख लिए हो उनका भी फोटो लेके डाल देना। कर दी परमिशन चेंज, फटाफट डालो, फटाफट फटाफट, क्विकली। क्लास इज अबाउट टू एंड इन लेस देन 1 minute, बेटा डू इट फास्ट। ओनली वन प्रोग्राम आई एम आस्किंग फॉर। डन। सर जस्ट 1 मिनट। क्लास विल ऑटोमेटिकली एंड इन लेस देन 30 seconds. सर डन। Done. You have sent in the class group? No sir, I'm going to do it.